viscosity. And I told you Newton's formula for viscosity, F is equal to minus eta A dV by dx. So in this case we took two layers. There was a stationary layer, where velocity of the liquid flow is 0. Then we took two layers located at different distances from the fixed layer. One layer moving with velocity v, another layer moving with velocity v plus dv. This layer was located at distance x and this was located at x plus dx. Okay, the liquid flow was in this direction, flow of liquid, and the velocity gradient dv by dx, I told you, acts perpendicular to the direction of flow. This acts in the transverse direction. That means this acts perpendicular to the flow of liquid. Velocity gradient dv by dx always acts in this direction, and this direction is perpendicular to the direction of flow of liquid. Then I told you, because of this velocity gradient there was an opposing force, viscous drag F, and Newton gave formula for the viscous drag, F is equal to minus eta A dV by dx. Now this viscous drag, which you can compare with the friction in case of solid. In case of solid, when one surface moves off the surface of another, then force of friction comes into the picture and that opposes the motion of the solid body. Okay, similarly here there are two layers separated by distance dx, having velocity difference dv. There is a relative motion and liquid doesn't like this relative motion. Liquid tends to destroy this relative motion. Okay, liquid wants that all the layers should move with the same speed. This can happen only when the fluid is ideal. For real fluid, there will be velocity gradient, there will be relative motion between the different layers. Okay, and liquid will try to destroy this relative motion. And therefore, an opposing force will act. This force will oppose the flow of the liquid, and the direction of this viscous drag is opposite to number one. Number two, this viscous drag will act tangential to the liquid layer. ये जो layer है, इसके tangential react करेगा. So two things about this. It's an opposing force. It opposes the flow of the liquid. Therefore, it acts in a direction opposite to the direction of flow. Number two, this acts along the tangent to the liquid surface. Clear? Whereas velocity gradient always acts perpendicular to the direction of flow. Clear? And from this we got an expression for eta, that was F by A upon dV by dx. So yesterday we got a dimension formula for this, that was ml minus 1 T minus 1. Dimension formula for coefficient of viscosity. And if you want to define this, I told you a method to define any constant of proportionality. That was the coefficients of the constant of proportionality, they are to be taken unit. For example, in this case, if you take area of cross section of the layer 1 dV by dx, again 1, then you will say the coefficient of viscosity is equal to the viscous drag. Okay, so if you take this as 1, then you can say eta is equal to F by A. This is only if this velocity gradient is unity. If you take dV by dx 1, then you can say eta is equal to F by A. Now you can define
coefficient of viscosity. It is force required per unit area to maintain a unit velocity gradient. दो लेयर के बीच में यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट मेंटेन करने के लिए जो आपको फोर्स पर यूनिट एरिया चाहिए वही विस्कोसिटी है. कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द विस्कस ड्रैग रिक्वायर्ड पर यूनिट एरिया टू मेंटेन a unit velocity gradient. Okay, then I told you the SI unit of this was decapoise. One decapoise, you can derive this SI unit from this formula. This F over A you can take in Newton per meter scale or Pascal, and then velocity gradient 1 meter per second per meter. And if you simplify, then you will get the unit of SI unit of coefficient viscosity Pascal second, which is also decapoise. Decapoise and Pascal second, they are same. Now how to define decapoise? One thing, decapoise is SI unit of coefficient of viscosity. Decapoise is SI unit of coefficient of viscosity. Now you have to define this decapoise. Now how to define? Okay, the coefficient of viscosity will be 1 decapoise if 1 Newton per meter square force is required to maintain a velocity gradient of 1 meter per second per meter. Velocity gradient per meter per second per meter means आप 1 मीटर इधर जाते हैं, what you find कि 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी बढ़ जाती है, चेंज हो जाती है. 1 meter per second per meter means 1 meter per second is the change in the velocity of the liquid layer on moving 1 meter in a direction perpendicular to the direction of flow. जिधर लिक्विड फ्लो हो रहा है उसके राइट एंगल पे 1 मीटर जाओ, जहाँ भी आप खड़े हो वहाँ वेलोसिटी देखो, 1 मीटर जाओ in a direction perpendicular to direction of flow, and if you find कि 1 meter per second वेलोसिटी चेंज हो गई है, after every 1 meter 1 meter per second वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वेलोसिटी ग्रेडियंट माना जाएगा 1 meter per second per meter. तो 1 meter per second per meter वेलोसिटी ग्रेडियंट मेंटेन करने के लिए आपको कितने न्यूटन फोर्स पर मीटर स्क्वायर चाहिए, वो decapoise है. That means coefficient of velocity of a fluid is said to be 1 decapoise if to maintain a velocity gradient of 1 meter per second per meter we require a force of 1 Newton per meter square of the liquid layer. Clear? And this decapoise is also equal to poise second. In CGS system, CGS unit of eta, coefficient of viscosity, is poise. So 1 poise will be, you can write this, making use of this using CGS system. In CGS system, F over A will be in dyne per centimeter scale. Velocity gradient will be 1 centimeter per second per centimeter. The basic formula from which you are driving the unit is this Newton's formula for viscosity. Okay, you have to define eta, so therefore get this expression for eta only from this Newton's law. Then substitute the values in SI system if you want SI unit, and in CGS system if you want CGS unit. Okay, the CGS unit of coefficient of viscosity is 1 poise.
and we'll define one poise as the coefficient of viscosity of a fluid will be one poise if to maintain a velocity gradient of 1 centimeter per second per centimeter, a force of 1 dyne per centimeter square of the liquid layer is required. इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड पर सेंटीमीटर मीन्स आप 1 सेंटीमीटर मूव करो इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फ्लो, यू विल फाइंड 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी चेंज होती रहती है. फॉर आफ्टर एवरी 1 सेंटीमीटर मूवमेंट 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड विल बी चेंज इन वेलोसिटी. सो विल से द वेलोसिटी ग्रेडियंट इज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड पर सेंटीमीटर. तो इतना वेलोसिटी ग्रेडियंट मेंटेन करने के लिए आपको कितना ये चाहिए फोर्स पर एंड एरिया, दैट इज 1 dyne per centimeter square. अगर इतना चाहिए तो coefficient of viscosity will be poise. Now you can establish a relation between decapoise and poise. One decapoise will be equal to 10 poise. You can convert decapoise into poise. How? Replace Newton by time. न्यूटन को टाइम से रिप्लेस करो. 1 न्यूटन इज 10^5 dyne और सेंटीमीटर स्केयर के बनाओ सेंटीमीटर स्केयर. 1 मीटर स्केयर विल बी 10^4 सेंटीमीटर स्केयर. तो इधर 10^5 dyne आया, नीचे 10^4, इसकी जगह 10^4 सेंटीमीटर स्केयर आया. ओके, तो साथ सिर्फ 10 बचा. इधर 10^5 dyne, इधर 10^4 सेंटीमीटर स्केयर, 10 बच गया. जो डिनोमिनेटर में तो जो यूनिट है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर -1 कट जाना, सिर्फ सेकंड -1 आना. इधर भी मीटर, मीटर -1 कट जाना, सिर्फ सेकंड -1 आना. तो सिर्फ 10 ही तो फालतू आया इसमें. देयरफॉर 1 decapoise इज इक्वल टू 10 poise. क्लियर? तो हमने क्या चीज़ देखी? तो हमने ये किया था, लेकिन ऐसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें हमने क्या देखा? एक तो जो विस्कस ड्रैग है, ये वो अपोजिंग फोर्स है जो लिक्विड के अंदर जो रिलेटिव मोशन है, लिक्विड की जो डिफरेंट लेयर है डिफरेंट वेलोसिटी से जा रही हैं, वो वेलोसिटी डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए ये विस्कस ड्रैग है. लिक्विड विस्कस ड्रैग को ये पसंद नहीं है कि उसकी लिक्विड की लेयर डिफरेंट स्पीड से मूव करे. वो चाहता है कि लिक्विड आइडियल बन जाए, है ना. आइडियल लिक्विड कौन सा होता है? जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 0 है, जिसमें विस्कस ड्रैग है ही नहीं, जिसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट है ही नहीं. ये वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं है, 0 है फॉर आइडियल लिक्विड. तो ये 0 है तो फिर विस्कस ड्रैग 0 है, ईटा 0 है. तो हम उसको बोलेंगे ये नॉन विस्कस है. आइडियल फ्लूइड इज नॉन विस्कस, विच मीन्स इन आइडियल लिक्विड ऑल लेयर्स मूव विद द सेम स्पीड. Okay, for ideal liquid there is no viscous drag, no opposing force. इसके तरफ for a smooth surface friction is 0, coefficient of friction is 0. सॉलिड में करते थे ना, if surface is smooth, which means frictionless, which means no coefficient of friction, mu is equal to 0, and no force of friction, F is equal to 0 for smooth surface. Similarly, for ideal liquid there is no coefficient of viscosity, it is 0. Because there is no velocity gradient. No velocity gradient means all layers move with the same speed. No two layers will move with a different speed in ideal liquid. सब लेयर की सेम स्पीड होगी. आपको एग्जांपल बताया कि अगर लूज पेपर आप लेते हैं, अपने हाथ पे रखते हैं और मूव करते हैं तो दे गेट सेपरेटेड, क्योंकि उनकी स्पीड डिफरेंट होती है. लेकिन जो पेपर आपके पाम के साथ सबसे नीचे था वो वहीं रहता है. जैसे आपको बताया था कि लिक्विड विच इज इन्वॉल्व विद द विच इन टच विद द वॉल ऑफ द ट्यूब इज स्टेशनरी. इफ द लिक्विड इज फ्लोइंग इन द कैनाल देन द लेयर विच इज इन कंटैक्ट विद द बेड ऑफ द कैनाल इज स्टेशनरी. तो सिमिलरली पेपर में जो इन टच विद द हैंड है वो स्टेशनरी, बाकी सारे आगे पीछे हो जाएंगे. लेकिन इसको ख़त्म करने के लिए कि पेपर दे शुड नॉट गेट सेपरेटेड ऑन मूविंग, क्या करते हैं? उसको पेपर्स को बाइंड कर देते हैं, स्टेपल कर देते हैं. और जब वो सारे पेपर जो बाइंड कर दिया आपने, स्टेपल कर दिए, फिर आप मूव करो, जितना मर्जी फास्ट मूव करो, उसको लेकर कोई भी पेपर सेपरेट नहीं होते.
क्योंकि आप उनकी सबकी सेम स्पीड है। पैदल चलने वाले डिफरेंट स्पीड से मूव करते हैं, लेकिन एक ही बस में बैठे जो लोग हैं उनमें रिलेटिव वेलोसिटी खत्म हो गई, ऑल विल मूव विद द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है ना, तो उनमें फिर कोई अपोजिशन नहीं होती। सर वैसे आइडियल ये जो फ्लूइड होता है वो होता क्या है? जैसे आइडियल गैस में कुछ रूल्स होते हैं, हाँ, जो वो फॉलो करते हैं, वो आइडियल गैस होती हाँ, है। हाँ। ऐसे आइडियल लिक्विड जो आइडियल लिक्विड है उसमें पहली बात कि वो नॉन विस्कस होगा, ये फोर्स ऑफ विस्कोसिटी जीरो होगा, नंबर 1। नंबर 2, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो होगा। नंबर 3, कोएफिशिएंट विस्कोसिटी जीरो होगा, मतलब जो ईटा है जीरो होगा। जीरो होगा। जो स्मूथ सरफेस के लिए म्यू जीरो होता है ना, सॉलिड फ्रिक्शन में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता था F/R, जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन वो रेशियो कांस्टेंट होती थी, उसको हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते थे। अच्छा, हम कहते हैं स्मूथ सरफेस है तो हम कहते थे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो है। क्यों? म्यू जीरो है तो F/R इज इक्वल टू म्यू होता है, तो दैट मींस F जीरो है, फ्रिक्शन नहीं होगा अगर सरफेस स्मूथ है। अगर लिक्विड आइडियल है तो फिर यहाँ विस्कस ड्रैग नहीं होगा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नहीं होगी, जीरो होगी, वेलोसिटी डिफरेंस नहीं होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो होगा। तो बस यही 3 है। और भी है, अभी थोड़ा और आगे डिटेल में हम जाएंगे लिक्विड्स का। जैसे आइडियल लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल। जैसे अगर आप आइडियल लिक्विड की बात करते हैं, चलो आपने पूछ लिया है, तो जो आइडियल फ्लूइड होगा, जो आइडियल गैस हो चाहे वो आइडियल लिक्विड हो, नंबर 1 क्या होगा, उसमें कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जीरो है। नंबर 2, विस्कस ड्रैग जीरो है। नंबर 3, वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो है। नंबर 4, इनकम्प्रेसिबल है, उसको आप प्रेस नहीं कर सकते। इनकम्प्रेसिबल मीन्स कंप्रेसिबिलिटी जीरो है। कंप्रेसिबिलिटी इसका मतलब क्या है, चेंज इन वॉल्यूम पॉसिबल नहीं है, आप उसको दबा नहीं सकते, दबना तो कोई भी नहीं चाहता, ठीक है ना। अगर आप सो रहे हैं, आपके ऊपर कोई पैर रख दे तो आपने प्रेशर, एक्सेस प्रेशर पड़ गया, एकदम आप पैर हटाते हटना, क्यों? आप प्रेस नहीं होना चाहते। दैट माय पॉइंट। जो आइडियल लिक्विड होगा वो इनकम्प्रेसिबल होगा। इनकम्प्रेसिबल मीन्स कंप्रेसिबिलिटी उसमें जीरो है, यू कैन नॉट चेंज इट्स शेप, यू कैन नॉट चेंज इट्स वॉल्यूम। ओके, टेम्परेचर चेंज कर सकते हो, प्रेशर चेंज कर सकते हो, वॉल्यूम नहीं चेंज कर, उसको दबा नहीं सकते, चाहे आइडियल गैस है चाहे आइडियल फ्लूइड है। ओके, अच्छा, और क्या है, अब आप ये देखो, जो बल्क मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी होती है, दैट इज टेस्ट बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, होता है ना, ये बल्क मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी है। इसका एक और नाम है, एक तो इसको बल्क मॉडुलस कहते हैं, ये आप पढ़ सकते हो, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सभी चीजें आपको पहले पढ़ा दी थी। इसका एक और नाम है इनकम्प्रेसिबिलिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी और इनकम्प्रेसिबिलिटी, वन एंड सेम थिंग। यू डिफाइन दिस बाय दिस विद द रेफरेंस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना। ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पैदा होता है तब बल्क मॉडुलस की बात करते हैं। अब आपने कह दिया कि लिक्विड आइडियल है, उसमें स्ट्रेन पैदा नहीं कर सकते, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये जीरो होगा। If liquid is ideal, it is incompressible, you cannot change its volume, you cannot produce any strain। जैसे कहते हैं सॉलिड इज रिजिड, रिजिड सॉलिड मीन्स ये आइडियल सॉलिड है। रिजिड सॉलिड मीन्स कि यू अप्लाई फोर्स ऑफ एनी मैग्नीट्यूड, फोर्स विल बी अनएबल टू प्रोड्यूस एनी स्ट्रेन, एनी टाइप ऑफ चेंज, वो दबेगी नहीं, एक्सटेंड नहीं होगी, उसकी जो लॉन्गेविटी है वो नहीं होगी, लॉन्गेशन नहीं होगा, उसकी कंट्रैक्शन नहीं होगी, जितना मर्जी गर्म कर लो, जितना मर्जी फोर्स लगा लो, अगर सॉलिड रिजिड है उसको दबा नहीं सकते, उसकी शेप नहीं चेंज कर सकते, उसमें स्ट्रेन नहीं पैदा कर सकते, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है नहीं पैदा कर सकते, ओके, चाहे वो लेटरल स्ट्रेन है आप नहीं पैदा कर सकते, शेप नहीं चेंज कर सकते, स्ट्रेन ही नहीं पैदा होता। सिमिलर लिक्विड आइडियल है तो उसमें
स्टेन नहीं पैदा होगा। वॉल्यूमेट्रिक स्टेन पैदा कर सकते हैं हम लिक्विड और गैसेज में, वो पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन अगर वो कहता है मैं लिक्विड में आइडियल हूँ तो फिर वो स्टेन भी पॉसिबल नहीं है। लॉन्गिट्यूडनल स्टेन तो सिर्फ सॉलिड में होता है, लिक्विड और गैसेज में लॉन्गिट्यूडनल स्टेन नहीं होता, लेटरल स्टेन नहीं होता। लिक्विड और गैसेज में सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक स्टेन ओके वो पैदा किया जा सकता है। लेकिन अगर लिक्विड कहता है मैं आइडियल हूँ तो फिर वॉल्यूमेट्रिक स्टेन भी नहीं। तो जब ये जो डिनोमिनेटर है जो वॉल्यूमेट्रिक स्टेन है, चेंज इन वॉल्यूम और रीजनल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम चेंज तो कर ही नहीं सकते, लिक्विड तो इनकम्प्रेसिबल है। तो जब ये चीज़ जीरो हो जाएगी तो फिर के कितना हो जाएगा, इट विल बिकम इनफाइनाइट। ओके, तो ये के क्या है, बल्क मॉडुलस और कंप्रेसिबिलिटी, इनकम्प्रेसिबिलिटी इनफाइनाइट है। और जो कंप्रेसिबिलिटी है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ इनकम्प्रेसिबिलिटी। तो फिर एक और प्रॉपर्टी आ गई नंबर, जो कंप्रेसिबिलिटी है आइडियल लिक्विड में दैट इज जीरो। दैट इज जीरो, कंप्रेस ही नहीं कर सकते, वॉल्यूम नहीं चेंज कर सकते। ये तो स्टेन है ना, स्टेन नहीं पैदा कर सकते। स्टेन तो पैदा तभी होगी जब वॉल्यूमेट्रिक चेंज आएगा। जब वॉल्यूमेट्रिक चेंज ही नहीं वॉल्यूम में हो रहा तो स्टेन भी नहीं होगा। तो फिर आइडियल फ्लूइड है तो ये चीज़ जीरो है, तो के की वैल्यू जो बल्क मॉडुलस है वो इनफाइनाइट है। बल्क मॉडुलस का दूसरा नाम इनकम्प्रेसिबिलिटी है, वो इनफाइनाइट है। और कंप्रेसिबिलिटी इसका रेसिप्रोकल है। अगर इनकम्प्रेसिबिलिटी इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल जीरो होता है, तो कंप्रेसिबिलिटी जीरो है, विच मीन्स कि कंप्रेस नहीं कर सकते आइडियल लिक्विड को। वॉल्यूम कैन नाइदर बी इंक्रीज नॉर डिक्रीज। चेंज मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज, चेंज ही पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स इंक्रीज इन वॉल्यूम भी पॉसिबल नहीं है, डिक्रीज इन वॉल्यूम भी पॉसिबल नहीं है। तो कंप्रेसिबिलिटी जीरो, ideal fluid cannot be compressed. You can exert pressure of any magnitude, उनको दबा नहीं सकते। प्रेशर बढ़ने से तो वॉल्यूम चेंज होगी ना, प्रेशर इतना मर्जी बढ़ा दो। आइडियल लिक्विड, आइडियल गैसेज, उनका वॉल्यूमेट्रिक चेंज जीरो। तो इनकम्प्रेसिव इनफाइनाइट है, कंप्रेसिबिलिटी जीरो है। 5 पॉइंट हो गए। अच्छा, एक नंबर होता है रेनॉल्ड नंबर, उसको बोलते हैं रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर पॉइंट है नेक्स्ट। यस। अब जब चलो आपने पूछ लिया क्वेश्चन तो पूरा डिटेल में बता देते हैं कि आइडियल लिक्विड की क्या पहचान है, लिक्विड हो या गैस हो। तो एक नंबर है जिससे लिक्विड की पहचान होती है, रेनॉल्ड नंबर। ओके, जैसे मान लो मारुति गाड़ी है, जो ओरिजिनल मारुति गाड़ी जब बनी थी तो उसमें जो शीट लगाई जाती थी जिससे उसकी बॉडी बनती थी, तो उसकी शीट की थिकनेस जिससे उसकी स्ट्रेंथ भी पता लगती है, वो गॉज में मापते थे। ये 22 गॉज की है, ये 24 गॉज की है। जितना गॉज कम होगा, ठीक है, उतनी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। बाद में फिर मारुति 24 गॉज की बनने लग गई, तो उसकी स्ट्रेंथ शीट की, उसकी थिकनेस, तो वो हम फिर उस ग्लास की शेप में मापते हैं। और लिक्विड को भी एक नंबर दिया गया है, रेनॉल्ड नंबर। ओके, अगर लिक्विड आइडियल है तो उसका ये जो रेनॉल्ड नंबर होगा, जिसको हम ये NR से मान लो डिनोट करते हैं रेनॉल्ड नंबर को, ये नंबर 0 और 2000 के बीच में होना चाहिए। अगर ये इसके लेस होना चाहिए, बिटवीन 0 एंड 2000, लेस देन 2000 बोल दो। ओके, लेस देन 2000। और जो आइडियल लिक्विड होते हैं उनका रेनॉल्ड नंबर लाइज बिटवीन 0 एंड 2000। सर जो रियल होता है नहीं, आइडियल लिक्विड, उनका रेनॉल्ड नंबर 2000 से लेस है, नेगेटिव तो होता नहीं। तो फिर 0 और 2000 के बीच में ये नंबर अगर
है तो हम कहेंगे कि लिक्विड आइडियल है। और अगर लिक्विड आइडियल नहीं है, रियल है, हमें ये लिक्विड से वास्ता पड़ता है डेली लाइफ में। ओके, तो जो रियल लिक्विड है उसमें जो रेनॉल्ड नंबर है, रियल लिक्विड, रियल फ्लूइड, रेनॉल्ड नंबर is always greater than 3000. That means different liquid have been assigned a number. और जो लिक्विड को नंबर असाइन किया, जैसे कहते हैं ना भी मार्क्स मिल गए, जिनके 33 से लेस है उनको कह दो जी फेल है, जिनके 33 से ज़्यादा है जी उनको कह दो ये पास है। ओके, फिर आगे भी फर्स्ट डिवीज़न वाले जिनके जी मोर देन 60% है, डिस्टिंक्शन जिनके 75% से ज़्यादा, टॉपर जिसके हाईएस्ट मार्क्स हैं। ऐसे सॉलिड में भी इलास्टिक लिमिट होती थी ना कि यहाँ तक जो है वो इलास्टिक रहता है, फिर प्लास्टिक बन जाता है, लिमिट हो गई ना। तो सिमिलरली जो लिक्विड को नंबर असाइन किया गया बिटवीन जो रियल लिक्विड है वो तो उसका रेनॉल्ड नंबर तो 3000 से ज़्यादा होगा, लेकिन अगर आइडियल लिक्विड है तो रेनॉल्ड नंबर विल बी लेस देन 2000। नाउ द क्वेश्चन इज what happens to the nature of the fluid if number lies between 2000 and 3000? फिर क्या बोलोगे? 2000 and 3000? हाँ, हाफ आइडियल, है? हाफ आइडियल। नो, हाफ आइडियल हाफ रियल का नहीं होता कोई भी। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे के 32.6 या मीडियोकर, नहीं 32 पॉइंट, मान लो 32.2 मार्क्स आ गए। अब राउंड ऑफ करोगे तो 32 बैठते हैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जो एग्जामिनेशन कमेटी है वो फैसला करती है कि यार एक बच्चे के 32 पॉइंट इतने मार्क्स आए हैं सब्जेक्ट में, तो उसको फेल डिक्लेयर किया जाए कि पास डिक्लेयर किया जाए। इट मीन 32.4 को राउंड ऑफ किया जाए कि नहीं किया जाए, किया जाए तो कैसे किया जाए, ठीक है ना। फिर क्या किया जाता है, फिर जो एग्जामिनेशन चार्ज होता है वो फिर बाकी टीचर्स को भी बुलाता है जी, प्रिंसिपल हेड होते हैं तो उस एग्जामिनेशन कमेटी को के साथ और टीचर्स को भी बुलाते हैं कि यार आप डिसीजन लेंगे क्या होना चाहिए। तो यार सिर्फ एक सब्जेक्ट में 32.4 है, बाकी सब में अच्छे मार्क्स हैं, तो इसके कारण इसको फेल कर दो कि कंपार्टमेंट आ जाएगी, यहाँ से मत करो यार, राउंड ऑफ कर दो। जिसके 32.1 भी है ना उसको 33 मान के क्या दो, पास है। लेकिन वो क्लास जो सब्जेक्ट टीचर था वो अकेला 32.4 वाले को उसके आगे नहीं लिखता ये पास है। 33 होता फिर उसका अपना डिसीजन है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता, 33 है तो पास है। लेकिन 33 से थोड़ा सा भी कम है तो फिर वो अकेला डिसाइड नहीं कर सकता। तो सिमिलरली जो अगर रेनॉल्ड नंबर लाइज बिटवीन 2000 एंड 3000 मीन्स ग्रेटर देन 2000 लेस देन 3000, क्योंकि जो ग्रेटर देन 3 है वो तो डिक्लेयर्ड है कि ये रियल है, लेस देन 2000 क्लियर है कि ये आइडियल है। The problem is कि if NR is between 2000 and 3000, then फिर हमें भरोसा नहीं है लिक्विड पे। It can switch over from real to ideal or ideal to real। कभी भी सर कभी। नेचर चेंज हो सकता है? है, नेचर कभी भी चेंज हो जाएगा। क्योंकि और फैक्टर भी है ना उसको डिसाइड करने वाले। सर ये रेनॉल्ड नंबर का अगर एक्सप्रेशन देखा जाए, रेनॉल्ड नंबर किस बात पर डिपेंड करता है, अभी मैं बाद में बताना चाहता था, फिर आपका क्वेश्चन बीच में आ गया कि आइडियल लिक्विड की पहचान क्या है। अब 6 पहचान तो बता दी, अब यहाँ फिर फंस गई 2000-3000 के बीच में रेनॉल्ड नंबर है तो क्या किया जाए, लिक्विड को क्या माना जाए। इस बच्चे ने क्या दिया, उसको सेमी आइडियल मान लो, सेमी आइडियल कोई प्रॉपर्टी नहीं है उसकी, ठीक है ना। फिर वही मैंने आपको एग्जांपल दिया 32.4 वाले का क्या किया जाए, ठीक है ना। तो उसको पास किया जाए कि फेल किया जाए, एक सिंगल टीचर के हाथ में नहीं है, फिर पूरी कमेटी बैठती है, ठीक है ना। अब यहाँ रेनॉल्ड नंबर खुद किसी पे डिपेंड करता है,
किस पे डिपेंड करता है? ये डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है, ये डायमीटर ऑफ द ट्यूब है। ओके, और नीचे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, और इधर वेलोसिटी है। Density of the Battery level is liquid. 80%. So what which you want to decide कि रेनॉल्ड नंबर अगर ऐसा होगा तो लिक्विड क्या माना जाए? तो रेनॉल्ड नंबर यू कैन ड्राइव दिस एक्सप्रेशन बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन। इफ यू आर टोल्ड दैट फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन, यहाँ आपको बता दिया कि जो रेनॉल्ड नंबर है डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डायमीटर ऑफ द ट्यूब थ्रू विच लिक्विड इज फ्लोइंग, and the velocity with which liquid is flowing, and the coefficient of viscosity. लिक्विड गाढ़ा है, विस्कोसिटी ज़्यादा विस्कस है, नॉन लेस विस्कस है, मोर विस्कस है, तो ये भी डिसाइड करेगा इसको, ठीक। और डायमीटर ऑफ द ट्यूब थ्रू विच लिक्विड इज फ्लोइंग, एंड फिर स्पीड विद विच लिक्विड इज फ्लोइंग। ओके, और फिर ये जो स्पीड है VC, ये एक क्रिटिकल स्पीड है, क्रिटिकल, जैसे 30 मार्क्स क्रिटिकल है, बिलो 33 क्रिटिकल मार्क्स है, बिलो 33 फेल, और आफ्टर 33 पास, ठीक है ना। अब 98.4 ये एक टेम्परेचर है जो नॉर्मल पर्सन का, ये क्रिटिकल है, इससे ज़्यादा हो गया तो डॉक्टर कह देगा इसको बुखार है, ठीक। इलास्टिक लिमिट ये क्रिटिकल है कि इससे पहले सॉलिड इज परफेक्टली इलास्टिक, और उस लिमिट के बाद वो प्लास्टिक बन जाता है। 33 से कम वाला फेल, 33 से ज़्यादा पास, 2000 से कम वाला आइडियल, 3000 से ज़्यादा वाला रियल, लेकिन बीच वाला फिर उसके लिए फिर बाकी फैक्टर बुलाए जाएंगे, मीटिंग बुलाई जाएगी, भी आप तुम डिसाइड करो भी क्या किया जाए ऐसे लिक्विड के साथ, ठीक है ना। तो फिर ये इनके फैसले से उसकी स्पीड क्या है, फिर पूछा जाएगा कि लिक्विड की स्पीड क्या है, तो बोले ये स्पीड है। अच्छा स्पीड ये है, तो फिर यहाँ भी 3 पॉसिबिलिटी बनेंगी। नंबर 1, इफ द लिक्विड स्पीड इज लेस देन क्रिटिकल और इक्वल टू क्रिटिकल और ग्रेटर देन क्रिटिकल, 3 पॉसिबिलिटी है। जैसे NR की 3 पॉसिबिलिटी थी, लेस देन 2000, मोर देन 3000, इन बिटवीन। ओके, तो देयर इज ए वेलोसिटी below which whenever liquid will flow it will behave like an ideal liquid, and if speed is more than critical velocity, if speed more than critical है तो फिर वो रियल माना जाएगा, वो रियल लिक्विड होगा। तो स्पीड भी कंट्रोल करती है रेनॉल्ड नंबर को, रेनॉल्ड नंबर कंट्रोल करता है नेचर ऑफ द फ्लूइड को, ठीक है। फिर हम इसमें एक और चीज़ लेते हैं कि जो फ्लो है वो टर्बुलेंट है या स्ट्रीमलाइन है, वो भी डिसाइड करता है कि लिक्विड आइडियल है कि रियल है। स्ट्रीमलाइन फ्लो, जब लिक्विड आइडियल होता है उसका फ्लो स्ट्रीमलाइन होता है, जब लिक्विड रियल होता है तो फ्लो स्ट्रीमलाइन नहीं होता, वो टर्बुलेंट हो जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो? स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई ट्यूब है, यू कैन हैव ए ट्यूब ऑफ डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मान लो यहाँ एरिया कुछ और है, यहाँ एरिया कुछ और है, ट्यूब इज सच दैट हैज नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया, कहीं एरिया ज़्यादा कहीं एरिया कम है। ओके, तो आप लिक्विड के किसी एक मॉलिक्यूल को फॉलो करो कि वो किस रास्ते पे जा रहा है। During the flow of liquid, you follow the path of any one molecule. Okay, वो मान लीजिए ये एक पाथ है, इस सड़क पे वो गया, मान लो आपने चेक किया यहाँ A पर, फिर B पर, फिर C पर। जब A पर देखा तो वेलोसिटी ये है, B पर देखा तो वेलोसिटी डिफरेंट है, C पर देखा तो वेलोसिटी डिफरेंट है।
liquid speed at different cross section area is different. कहीं फास्ट चल रहा है, कहीं स्लो चल रहा है। ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसमें ये पॉइंट है, यहाँ से मॉलिक्यूल क्रॉस करके जाता है विद स्पीड v है, लेकिन v यहाँ जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वहाँ से जब निकलता है तो स्पीड कुछ और होती है। सी पॉइंट पे गया तो स्पीड कुछ और है, ठीक है। तो अभी भी हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि फ्लो स्ट्रीमलाइन है कि टर्बुलेंट है, लेकिन अगर इस पॉइंट को और भी लिक्विड के मॉलिक्यूल यहाँ से क्रॉस करके जाते हैं, if all the molecules during the flow of liquid, if all the molecules cross the same cross section with the same speed, कोई भी यहाँ से निकल के जाए इसी स्पीड से निकल के जाए तो फ्लो स्ट्रीमलाइन माना जाएगा। जैसे 26 जनवरी या 15 अगस्त को मान लीजिए वीआईपी के आगे मार्च पास्ट करते निकलते हैं सैनिक, एनसीसी कैंडिडेट होते हैं, आर्मी के भी होते हैं, तो मान लो ये स्टेज है, वीआईपी को सैल्यूट मारना। तो जब जो भी यहाँ से निकले स्टेज के सामने वीआईपी को सैल्यूट मारना। जब वो वीआईपी के सामने से निकले, जो भी निकले सेम स्पीड से निकले, उसके बाद जब भाग जाए, उससे पहले जब आराम कर रहा हो, लेकिन वेन एवर क्रॉसिंग द स्टेज इन फ्रंट ऑफ द चीफ गेस्ट, द वेलोसिटी ऑफ एवरी कैडेट सेम होगी, ठीक है ना। तब हम कहेंगे ये जो मार्च पास्ट है स्ट्रीमलाइन है। कोई तो वीआईपी पे आके खड़ा हो गया, कोई उसके आगे जो भाग के निकल गया, हाँ जी, कोई एक्टिंग करके निकल गया, यार ये मार्च पास्ट ये स्ट्रीमलाइन नहीं है, टर्बुलेंट है। जब पानी ब्रिज के नीचे से निकलता है ना, टर्बुलेंट होता है, उछल होता है, लेकिन आगे जब जाता है फिर फ्लो स्ट्रीमलाइन होता है, धीरे धीरे अगर फ्लो इक्वल हो तो वो स्ट्रीमलाइन, अदरवाइज वो टर्बुलेंट। नहीं, if all the particles or the molecules of the fluid cross the same cross section with the same speed, however this speed is different from this, तो ये यहाँ से 1000 मॉलिक्यूल क्रॉस करके गए, सबकी यही स्पीड थी, आगे जाके चेंज हो गई। हमने तो चेक करना है कि सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को जितने भी मॉलिक्यूल क्रॉस करके जाएंगे वो सेम स्पीड से जाएंगे तो फ्लो स्ट्रीमलाइन है। और अगर डिफरेंट स्पीड से जाते हैं तो फ्लो टर्बुलेंट है। लेकिन अगर लिक्विड आइडियल होगा तो कभी टर्बुलेंट फ्लो नहीं दिखाएगा, उसका फ्लो हमेशा स्ट्रीमलाइन होगा, उसके सारे मॉलिक्यूल सेम पॉइंट से क्रॉस करके जाएंगे, सेम स्पीड से जाएंगे। ये भी एक पहचान है। जो आइडियल फ्लूइड होगा, वेन एवर दैट फ्लूइड विल फ्लो, द नेचर ऑफ द फ्लो विल बी स्ट्रीमलाइन, क्योंकि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लो, स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट। If different molecules cross the same point with the same speed, flow is streamlined. If different molecules cross the same point of the tube with different speed, flow is turbulent. और अगर फ्लो स्ट्रीमलाइन है तो लिक्विड आइडियल माना जाएगा। आइडियल लिक्विड जब भी फ्लो करेगा फ्लो स्ट्रीमलाइन होगा। रियल लिक्विड का भरोसा नहीं, कभी स्ट्रीमलाइन हो गया, कभी टर्बुलेंट हो गया, स्विच ओवर कर जाएगा। ओके, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं मेटल है जी, ये नॉन मेटल है, ये बीच में मेटलाइट्स भी होते हैं, ठीक है ना। अब मेटलाइट्स क्या है, जिनकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो मेटल से भी मिलती है, नॉन मेटल से भी मिलती है। जो मेटलाइट बिल्कुल ऐसे बाउंड्री पे बैठे हैं, इधर मेटल का घर है, इधर नॉन मेटल का घर है, देखते हैं इधर हलवा बना, कहते हैं हम दोनों मेटल हैं जी, हम तो हलवा खाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी है, मेटल वाली भी है, नॉन मेटल वाली भी है, ठीक है ना। ए पॉइंट से हाफ जो है वो मॉलिक्यूल्स वो सेम स्पीड से जाए और हाफ की डिफरेंस नहीं, जो भी जाए यहाँ से ए से वी स्पीड से जाए, कोई भी जाए, जब भी जाए तो फ्लो जो है स्ट्रीमलाइन है। ये नहीं कि आधे जो इस स्पीड से गया, आधे तो नहीं, लिक्विड तो वही है, फ्लो तो वही है, फ्लो कंटिन्यूस होता है। जो लिक्विड का फ्लो है हम मान के चलते हैं कंटिन्यूस है, लेकिन कई बार हम कंटिन्यूस फ्लो नहीं करते। हॉस्पिटल में कोई बंदा बीमार हो गया, ग्लूकोज की बोतल लगा दी उसको डॉक्टर ने, रेगुलेटर भी लगा हुआ है,
लेकिन वो ड्रॉप बाय ड्रॉप ग्लूकोज की जो नेचर होती है बड़ी ठंडक पैदा करने वाली होती है, और जो बीमार आदमी है वो वैसे नहीं ठंड को टॉलरेट कर पाएगा, तो वहाँ जो ग्लूकोज का फ्लो हो रहा है, जो बॉडी में इनटेक जा रहा है, वो कंटिन्यूसली नहीं जा रहा। एक ड्रॉप गिरा, ठीक है ना, वह गैप आ गया, फिर थोड़ी देर के बाद एक ड्रॉप और गिरा। तो डॉक्टर डिसाइड करता है कि किस स्पीड से ग्लूकोज बॉडी के अंदर एंटर करना चाहिए, कंटिन्यूस या डिस्कंट। तो डिसकंटिन्यूस ही होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप करके जाता है, लगातार फ्लो नहीं होता, समझ में आया? लेकिन जब आप वाटरिंग करते हैं प्लांट्स को, तो जो ट्यूब यूज़ करते हैं टैप से लगा के, फ्लो कंटिन्यूस होता है, और वो एक्सियल फ्लो होता है। पाइप कहीं से कट कर जाए तो रेडियल फ्लो शुरू हो जाता है, वो अनवांटेड होता है, ठीक है ना। सिलेंडर से गैस जा रही है चूल्हे तक, बर्नर तक जो है कंटिन्यूस फ्लो ऑफ गैस है, रुक रुक के नहीं जाएगी। सर जो पाइप टेढ़ी मेढ़ी होकर रहते हैं फिर उसे भी एक्चुअली बोलेंगे। यस, जो पाइप ने कर्व शेप ले ली, ठीक है ना, कई बार तो पाइप बेंड कर जाती है, फिर तो कई बार फ्लो भी रुक जाता है, और पीछे प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि टैप से ट्यूब भी हट जाती है, पैर के नीचे दब जाए ट्यूब, कंटिन्यूस फ्लो पे फर्क पड़ेगा ना, बेंड हो जाए। वैसे कर्वेचर ले लिया ट्यूब ने तो फ्लो कंटिन्यूस रहता है, लेकिन आपने दबा दिया, आइडियल लिक्विड है नहीं, वो दबना चाहता नहीं, रियल लिक्विड तो दबता ही नहीं ना, जो ना सॉरी आइडियल लिक्विड दबता ही नहीं है, रियल लिक्विड तो फिर भी प्रेशर इंक्रीज करोगे दबेगा, लेकिन चाहता नहीं है दबना, ठीक है ना। कई तो कहते हैं ना, ले मेरे पेट पे ईंट रख के इसको तोड़, और कई कहते हैं ईंट रख के दिखा मारूंगा क्योंकि प्रेशर पड़ेगा ना, प्रेशर को रिलीज करना इमीडिएटली, डिमांड है सिचुएशन की। सो देयरफॉर जो आइडियल लिक्विड की पहचान के लिए हमारे पास कई फैक्टर हैं। पहला तो फैक्टर ये है कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है 0 है, विस्कस ड्रैग 0 है, वेलोसिटी ग्रेडियंट 0 है, ऑल एयर विल मूव विद द सेम स्पीड। फिर आ गया कंप्रेसिबिलिटी, कि कंप्रेसिबिलिटी 0 है, दबेगा ही नहीं वो। इसका रेसिप्रोकल इनकम्प्रेसिबिलिटी, जिसको बल्क मॉडुलस कहते हैं, वो इन्फिनिट होना चाहिए। ओके, फिर स्पीड की बात आ गई कि उसकी स्पीड लेस देन क्रिटिकल होनी चाहिए। क्रिटिकल स्पीड ऑफ द लिक्विड इज दैट स्पीड, less than that speed flow is streamlined, greater than that speed flow is turbulent। तो less than VC, अगर लिक्विड की स्पीड less than VC है तो फ्लो स्ट्रीमलाइंड है, और स्ट्रीमलाइंड है तो आइडियल है, आइडियल लिक्विड ऑलवेज है स्ट्रीमलाइंड फ्लो। गेट माय पॉइंट? और अगर ग्रेटर देन क्रिटिकल है तो टर्बुलेंट फ्लो है, और फिर जो टर्बुलेंट फ्लो है ना, कितना ये मेरा बच्चा ये झगड़ के आ गया, इसने तो कभी नहीं झगड़ा किया, लेकिन वो कैसे स्विच ओवर कर गया झगड़ा कि मैं कभी झगड़ा नहीं किया, आज कैसे कर दिया, स्विच ओवर हो गया ना, समझते हो ना। तो नेचर एकदम चेंज हो सकती है अंडर सब स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। तो इसलिए जो वेलोसिटी ऑफ द फ्लो है वो भी डिसाइड करने जा रहा है कि फ्लो लिक्विड आइडियल है या क्या। फिर नेचर ऑफ द जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन टर्बुलेंट, 2 टाइप का फ्लो होता है लिक्विड का, दोनों आपको बता दिए। और फिर अगर आइडियल लिक्विड है तो फ्लो विल बी ऑलवेज स्ट्रीमलाइन, टर्बुलेंट हो ही नहीं सकता, ठीक है। बंदा शरीफ है तो वो बदमाशी कर ही नहीं सकता, इतना कॉन्फिडेंस होता है। ओके, ऑनेस्ट है, डिसऑनेस्ट हो ही नहीं सकता अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, अगर वो सही मायनों में ऑनेस्ट। ये नहीं कि किसी ने नहीं देखा तो चोरी कर ली, देख लिया तो मैं तो नहीं करता चली ऐसे जो स्विच ओवर कर जाते हैं ना, वो सोचते हाँ भाई कहीं नहीं कोई देख रहा, मेरे को उठा लो चीज़। हाँ, कोई नहीं देख रहा, महंगी चीज़ पड़ी है, फिर आप ना उठाओ, फिर तो आप ऑनेस्ट हो, रियल मैनर में ऑनेस्ट हो, आइडियल ऑनेस्ट हो। तो मौका दे के बेईमानी कर ली तो स्विच ओवर करके फिर तो आप टर्बुलेंट हो, फिर आप आइडियल कहाँ से हो गए, फिर ऑनेस्ट कहाँ से हो गए, फिर तो मौके परस्त हो ना। तो इसलिए जो स्पीड ऑफ लिक्विड फ्लो है दैट इज आल्सो गोइंग टू डिसाइड द नेचर ऑफ द लिक्विड, आइडियल और रियल।
फिर दिस इज रिलेटेड टू ए नंबर, ये नंबर जो रेनॉल्ड नंबर है ये प्योर नंबर है, यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है। ओके, और एवरी लिक्विड हैज बीन असाइंड रेनॉल्ड नंबर। ये कैंपा कोला है कि थम्स अप है या फेंटा है, इनमें इनके डिफरेंट नंबर्स हैं। ये मोटी तार है, पतली तार है, उनके डिफरेंट गाज हैं। मोटी शीट है, पतली शीट है, डिफरेंट गाज हैं। इंटेलिजेंट बच्चा है, ये डफर बच्चा, डिफरेंट मार्क्स से पता लग जाता है। ठीक है ना, तो पहचान होती है। सो इसलिए रेनॉल्ड नंबर लेस देन 2000 तो गारंटी लिख दो कि ये आइडियल लिक्विड है। ग्रेटर देन 3000 लिख दो ये टर्बुलेंट फ्लो होगा और ये रियल लिक्विड है। अब बीच में फिर बाकियों की भी सलाह लो। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड देखो, स्पीड विद विच लिक्विड इज फ्लोइंग वो देखो, एंड द डायमीटर ऑफ द ट्यूब थ्रू विच लिक्विड इज फ्लोइंग वो देखो, और उसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देखो। ओके, अगर लिक्विड आइडियल है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 0 है ना, फिर तो ये कहता है रेनॉल्ड नंबर जो है वो तो इनफिनिट होना चाहिए। पर आइडियल के लिए तो 2000 से कम होना चाहिए ना रेनॉल्ड नंबर। और ये फार्मूला कहता है, तो अगर ईटा 0 आइडियल फ्लूइड, आपने देखा ईटा 0 है फॉर आइडियल फ्लूइड, तो उसका रेनॉल्ड नंबर इस हिसाब से देखा जाए इनफिनिट है, जो कि कंट्राडिक्शन है। वो तब है सिर्फ इसी के हाथ में डिसीजन हो। आप स्पीड नहीं देख रहे, डायमीटर ऑफ द ट्यूब नहीं देख रहे, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड नहीं देख रहे, सिर्फ एक ही फैक्टर पे नहीं। रेनॉल्ड नंबर डिपेंड्स अपॉन दीज 4 फैक्टर्स। इसको बाय द मेथड डायमेंशन आप चेक कर सकते हो कि अगर आपको ये दे दिया क्या कि वेलोसिटी, जो क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी, डिपेंड्स अपॉन डायमीटर, डिपेंड्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब इनके डायमेंशन ABC ले लो आप। You know what method of dimension? You can establish a relation between various physical quantity, making use of method of dimension. तो आपको क्वांटिटी दे दी वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, डिपेंडेंस दे दी डेंसिटी, डायमीटर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक, उनकी डायमेंशन ABC मान लो, और यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आप ABC की वैल्यू निकालो, तो आपको क्या मिलेगा। यहाँ से VC देखो क्या आएगा, यहाँ से VC आ रहा है हमारे पास NR ईटा ओवर DD, विच मीन्स जो वेलोसिटी में डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ये है, तो ईटा की पावर जो है वो C जो वैल्यू है C1 आनी चाहिए। और ये डिनोमिनेटर में आ रहे हैं दोनों फैक्टर, इनकी पावर -1 आनी चाहिए। ए शुड बी -1, आप चेक कर लो, B -1 और C1। ओके, बाकी रह गया ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, क्योंकि इफ ए क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फैक्टर, तो देन मेथड ऑफ डायमेंशन फेल्स टू एस्टैब्लिश द रिलेशन। तो इसलिए हमने NR नहीं लिया यहाँ। अगर NR लेते हो तो उसकी जो डायमेंशन है, उसकी जो पावर है वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि 3 बातों पे डिपेंड करे कोई फिजिकल क्वांटिटी, तब बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन आप उसका रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हो। इसलिए मैंने ये 3 फैक्टर लिए, VC के लिए 1, 2, 3, NR को कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगे, क्योंकि प्योर नंबर है, डायमेंशन इसके है नहीं। ठीक है ना, तो फिर NR की पावर 1 होगी। अगर ये लेते हैं तो NR की पावर 1 लेनी पड़ेगी ना, ईटा भी 1, इसकी पावर -1, इसकी पावर -1। पर 4 हम नहीं ले सकते ना, 3 ले लिए, चौथे को कांस्टेंट मान लिया। What I mean is that you can establish a relation between Reynolds number and other factors on which this depends. So these factors are the speed with which liquid is flowing, density of the liquid, diameter of the tube. ठीक है ना, तो ये चीज़ें हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब ये इसमें इसको कांस्टेंट मान के बाकी हमने इसका रिलेशन एस्टेब्लिश किया, जो कि ये आया, NR को कांस्टेंट मान लिया। तो अब हमने पूरा इसको स्केच किया कि जो आइडियल फ्लूइड है उसमें क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ओके, नंबर 1 कि वो नॉन विस्कस होना चाहिए। नॉन विस्कस मीन्स द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी शुड बी 0। और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 0 किसकी होती है, जिसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट ना हो।
ऑल एयर शुड मूव विद द सेम स्पीड। ये भी एड लिक्विड की पहचान है। इफ ऑल एयर्स आर मूविंग विद द सेम स्पीड, वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो। इफ वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो, ईटा जीरो। इफ ईटा जीरो, तो फिर विस्कस फोर्स जीरो। यू हैव ए रिलेशन बिटवीन ईटा एंड फोर्स। ये जीरो तो ये भी जीरो। ओके, विस्कस फोर्स जीरो होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जीरो होना चाहिए, वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो होना चाहिए, रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम होना चाहिए, स्पीड उसकी क्रिटिकल से कम होनी चाहिए, कंप्रेसिबिलिटी उसकी जीरो होनी चाहिए, इनकम्प्रेसिबिलिटी इन्फिनिटी होनी चाहिए। ओके, इतने फैक्टर। और फ्लो उसका हमेशा स्ट्रीम लाइन होना चाहिए अगर वाइड होना है। 7-8 प्रॉपर्टीज आपको बता दी। इंटेंडेड? मिल गया आंसर? ओके, तो वी स्विच ओवर टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। Now you have Sydney's formula. This formula gave the rate of flow of liquid, rate of flow of any fluid. Rate of flow, capital V, rate of flow of liquid. It means volume flowing per second, and this is also equal to, I told you yesterday also, A into V. A is cross section area of the tube and V is the average speed. Why average? Because different layers they move with different speeds. When you talk about the speed of the liquid, it is average speed. सर वो सेकंड में वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड है। Yes. Rate of flow or volume flowing per second. या how many liters flow per second. जैसे कोई पेशेंट है उसको ग्लूकोज की 1 लीटर की बोतल लगा दी डॉक्टर ने, और वो 1 लीटर की बोतल जो है वो ग्लूकोज है कंटिन्यूस फ्लो नहीं है, उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप जा रहा है, लेकिन फिर भी उस बोतल को खाली होने में 1 घंटा लग गया। 1 लीटर ग्लूकोज का बोतल ह्यूमन बॉडी के अंदर ड्रिप के थ्रू 1 घंटे में गया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वी, रेट ऑफ फ्लो 1 लीटर पर आवर। 1 लीटर ग्लूकोज की बोतल खाली हुई 1 घंटा लग गया। ओके, और वो जो ग्लूकोज बॉडी के अंदर गया है ड्रिप के थ्रू, हाँ जी, वो जो डॉल्स हैं उनके थ्रू गया है। तो फ्लो का रेट क्या हुआ, कितने लीटर 1 सेकंड में। तो यहाँ तो 1 लीटर ग्लूकोज जो है वो 1 घंटे में गया है। यू कैन डिसाइड रेट ऑफ फ्लो। पेट्रोल पंप पे जाते हैं, आपने 20 लीटर पेट्रोल डलवाना है कार के अंदर, तो आप जब आपको वो जीरो चेक कराता है तब घड़ी ऑन करो, 20 लीटर पेट्रोल में कितना टाइम लगा, टोटल वॉल्यूम बाय टोटल टाइम, ठीक है ना। 20 लीटर और मान लो 20 मिनट लग गए, तो 1 लीटर पर मिनट के हिसाब से पेट्रोल होस पाइप के थ्रू आपकी गाड़ी में गया है। रेट ऑफ फ्लो पता करना, हाउ मेनी लीटर्स पर सेकेंड। तो ये रेट ऑफ फ्लो है। दूसरा इसका तरीका ये है मेंसुरेशन के हिसाब से कि जो ट्यूब है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है और उससे स्पीड की स्पीड से लिक्विड फ्लो कर रहा है। बाकी ये जो स्पीड है क्रिटिकल से कम है कि ज़्यादा है कि बराबर है, ठीक है ना। पहली चीज़ बताई, अगर V लेस देन VC तो फ्लो स्ट्रीम लाइन है। जो आइडियल लिक्विड होता है उसका फ्लो हमेशा स्ट्रीम लाइन होता है, लेकिन अगर इसको इक्वल टू C करते हैं तो इसको लैमिनर फ्लो कहते हैं, लैमिनर। और अगर ग्रेटर देन VC है तो फिर इसको कहते हैं टर्बुलेंट है, टर्बुलेंट फ्लो है। तो ये जो V है वो एवरेज स्पीड है। फिर हर लिक्विड के लिए क्रिटिकल स्पीड है। ओके, हर टेस्ट में एलिजिबिलिटी है कि इतने नंबर लोगे तब हम आपको क्लियर मानेंगे, आपने टेस्ट क्लियर कराया।
कोई 33 मानता है, कोई 40 मानता है, ठीक है ना। कोई कहता है 60 से कम वाले को नहीं लेंगे, कोई 90 से कम वाले को नहीं लेंगे। कट ऑफ सब अलग रखी है। IIT है, JEE उसमें भी कट ऑफ रखा हुआ। ओके, CBSE वालों ने भी कट ऑफ रखा हुआ, अगली क्लास में भेजना है कि नहीं भेजना। तो वो जो कट ऑफ है वही तो क्रिटिकल है। कईयों के तो एग्जैक्टली उतने मार्क्स आते हैं, पास होने के लिए 33 चाहिए, 33 आते हैं, तो वो तो लेमिनर पास हुआ। ठीक, लेस देन आते हैं तो फेल हुआ, ग्रेटर देन आते हैं तो पास हुआ। तो जब इक्वल टू 33 है, जस्ट पास हुआ, जस्ट वर्ड लग जाता है, जस्ट पास हुआ, खतरा था, 1 नंबर भी कम आ जाता है, फेल डिक्लेयर होता। तो जस्ट पास वाला ये केस है। वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज जस्ट इक्वल टू द क्रिटिकल वेलोसिटी, फ्लो इज लैमिनर। हम ऐसे डिसाइड करने में। तो पुसिली ने एक रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का फार्मूला दिया। पुसिली ने लिक्विड के फ्लो को स्टडी किया और फिर उसने रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड के लिए एक एक्सप्रेशन निकाला। वो है π/8, ये कॉन्स्टेंट है, PR4 ओवर ηL। दिस इज Pusilli फार्मूला फॉर रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। अब ये रेट ऑफ फ्लो कैसे निकाला? ये हमने ट्यूब ले लिया, पाइप ले लिया जिसमें से लिक्विड का फ्लो हो रहा है। ये इस एंड पर प्रेशर P1 है, इस एंड पे प्रेशर P2 है, और P1 ग्रेटर देन P2 ले लिया, और जो डिफरेंस इन प्रेशर है उसको P ले लिया, जो Pusilli फार्मूला में P बैठा है, दैट इज difference in the pressure at the two ends of the tube. P1 minus P2 is equal to P. Then the length of the tube is L. Flow is supposed to be axial. No radial flow. Okay, when flow is perpendicular to the cross section area. Okay, and R is the radius of the tube, radius. And if you combine these two items, this is pressure gradient. Pressure gradient, change in pressure per unit distance in the direction of flow. Velocity gradient was perpendicular to the direction of flow, but pressure gradient is in the direction of flow. क्योंकि यहाँ से हम इधर जा रहे हैं, हमने क्या देखा, यहाँ से यहाँ जाते हुए प्रेशर कम हो गया है, P1 से P2 हो गया है। अरे P1 से P2 प्रेशर हो गया, कम हुआ है, क्योंकि लिक्विड की टेंडेंसी क्या है, टू मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ये दिखाया है, ये प्रेशर ज़्यादा है, ये कम है, दोनों में डिफरेंस है, वो P है। इतना डिफरेंस इतने डिस्टेंस के बाद आया है, यहाँ से इतनी दूर गए तब प्रेशर में डिफरेंस आया P। तो ग्रेडियंट होता है चेंज इन द फिजिकल क्वांटिटी विद डिस्टेंस, एंड इज प्रेशर ग्रेडियंट, तो चेंज इन प्रेशर विद डिस्टेंस। और आप किस डायरेक्शन में देख रहे हैं प्रेशर चेंज हो रहा है? इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, नॉट परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फ्लो। वो तो वेलोसिटी ग्रेडियंट था। दैट माय पॉइंट। तो ग्रेडियंट आपने देखना है किस डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। तो दिस प्रेशर ग्रेडियंट इज इन along the direction of flow. Got my point? And if you want to establish this relation by the method of dimension, so this is the physical quantity and depends upon number 1 coefficient of viscosity, number 2 pressure gradient, number 3 radius of the tube. Physical quantity is rate of flow, and the factors on which it depends are 3 factors: radius of the tube, then pressure gradient, and then coefficient of viscosity. लिक्विड का नेचर क्या है, विस्कस है, नॉन विस्कस है, विस्कस है तो कितना विस्कस है,
coefficient of viscosity will decide. Unitized के decoupage SI system, poise CGS system, okay? तो ये हमने ले लिया, ये इसको तो यहाँ ये कितना आना चाहिए? A should be -1 and B should be 1 and C should be 4. Looking at this relation, ये तो derived relation है ना, और ये हमने डायरेक्ट लिख दिया, बट यू कुड हैव derived this relation by the method of dimension provided you are given this information. रेट ऑफ फ्लो किस बात पर डिपेंड करता है, ओके? तो इसको आप ड्राइव करके देखो, और ये जो इनके जो डायमेंशंस हैं ABC, उनकी वैल्यू ये आनी चाहिए, तब ये फार्मूला बनता है, एंड यू कैन चेक। ये बन गया। इसमें क्या है, ये इसको क्यों कंबाइन किया गया कि यू आर यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन एंड देयर इज ए लिमिटेशन ऑन मेथड ऑफ डायमेंशन, इट कैन एस्टेब्लिश रिलेशन ओनली इफ ए क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन लेस देन 3 फैक्टर या 3 फैक्टर। तो यहाँ तो फिर 4 फैक्टर बन जाते हैं, तो दो को फिर कंबाइन करना पड़ेगा, तो एक नई क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। पी प्रेशर डिफरेंस है, लेंथ से डिवाइड किया तो प्रेशर ग्रेडियंट बन गया, तो ट्रीटेड एज ए वन फिजिकल क्वांटिटी। अब 3 रह गई, डिपेंडेंस 3 पर है, तो यू कैन ड्राइव मेकिंग यूज ऑफ मेथड ऑफ डायमेंशन। तो ये आ गया फार्मूला। तो जैसे जो वो था वेलोसिटी ग्रेडियंट था, वो परपेंडिकुलर होती है उसकी डायरेक्शन, हाँ, इसकी परपेंडिकुलर होती है, इसकी तो अलाउंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो है ना। प्रेशर तो इधर काम हो रहा है ना जिधर लिक्विड जा रहा है, वेलोसिटी तो उधर काम हो रही बढ़ रही थी जिधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ग्रेडियंट की डायरेक्शन पहचानो कि वो जो चेंज आ रहा है किस डायरेक्शन में आ रहा है। यहाँ प्रेशर में जो डिक्रीज हुआ है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो हुआ, इसलिए इसका डायरेक्शन अलोंग एक्सियल फ्लो या इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। तो फ्लो तो हम एक्सियल ही मानेंगे ना, कि जिस ट्यूब में जा रहा है उसमें कहीं वो कटी पटी ट्यूब नहीं है, रेडियल फ्लो नहीं हो रहा, ओके? हाँ, तो ये हमने ले लिया। अब आप इसको देखो, ये क्या है? रेट ऑफ फ्लो है, इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट होगा मीटर क्यूब पर सेकेंड, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड है ना, वॉल्यूम ओवर टाइम, वॉल्यूम मीटर क्यूब, या इसको लीटर में भी ले सकते हैं, लीटर पर सेकेंड, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द लिक्विड इज फ्लोइंग पर सेकेंड, या हाउ मेनी वॉल्यूम को हम मीटर क्यूब में भी ले सकते हैं, लीटर में भी ले सकते हैं पर सेकेंड, ठीक? ये इसका ऐसा ही यूनिट है। और सीजीएस में सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हो गया। अच्छा, उसके बाद देखो वी पी ओवर ईटा एल एक तो कांस्टेंट ही है ना देखा जाए, तो पी ऊपर रखो, ए आर स्क्वायर नीचे रखो, π/8 आप यहाँ अगर π/8 रखते हैं इधर, ओके? ये तो एक प्योर नंबर है। ये देखा जाए तो यहाँ इसमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है π/8, क्योंकि मेथड डायमेंशन आपको कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बताता, तो कांस्टेंट की वैल्यू आपको बाय द मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट निकालना पड़ता है, तो फिर ये उसीलिए का फार्मूला बनता है। अब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ, जैसे हमने थर्मल कंडक्टिविटी में भी कंपेयर किया, तो थर्मल रेजिस्टेंस निकालना था। इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है तो करंट को रोकता है, और थर्मल रेजिस्टेंस लिक्विड की हीट के फ्लो को रोकता है, और यहाँ भी एक रेजिस्टेंस होगा जो लिक्विड के फ्लो को रोकेगा। वो कौन है? वो ये है, दिस इज कॉल्ड फ्लूइड रेजिस्टेंस, लिक्विड रेजिस्टेंस और फ्लूइड रेजिस्टेंस।
ये कैसे आया? कंपेयर करो, ये करंट है, करंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ठीक, इसे कंपेयर करो, ये ओम्स लॉ है। What do you mean by current? Rate of flow of charge. And what is this? Rate of flow of liquid. This is rate of flow of charge. And this is rate of flow of liquid. Compare करो, ये क्या था? Potential difference. नीचे रेजिस्टेंस है, ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल नहीं, प्रेशर डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का रोल प्रेशर डिफरेंस ने किया, करंट का रोल रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड ने किया, यस सर। तो फिर रेजिस्टेंस का रोल ये करेगा ना, इसी का नाम रख दिया फ्लूइड रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ से कंपेयर करो, या थर्मल कंडक्टिविटी में भी आपने इसी से कंपेयर करके बताया था। वहाँ टेम्परेचर डिफरेंस था, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ प्रेशर डिफरेंस है। ओके, वहाँ रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट था, यहाँ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, यहाँ रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है। तीनों में एनालॉग है, तीनों को एक जगह रख के। ओके, तो तीनों रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ये है, ये फ्लूइड रेजिस्टेंस है, वहाँ आता था थर्मल रेजिस्टेंस। ऊपर होता था टेम्परेचर डिफरेंस, बाकी जो नीचे आता था वो थर्मल रेजिस्टेंस, और यहाँ आता था रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्लोइंग पर सेकेंड। हीट के केस में वहाँ हीट का फ्लो था, यहाँ लिक्विड का फ्लो है, यहाँ चार्ज का फ्लो है। ये चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड है, ये लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड है, और वो हीट फ्लोइंग पर सेकेंड, क्यू बाय टी। ओके, अब वो फार्मूला भी लिखो, जैसे अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर सेकंड था KA T1 माइनस T2 इंटू T अपॉन D। याद करो, अब ये T यहाँ ले आओ, ये रेट ऑफ फ्लो हो जाएगा, इस रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्लोइंग पर सेकेंड। ये भी रेट ऑफ फ्लो हो गया, ये भी रेट ऑफ फ्लो हो गया, ये भी रेट ऑफ फ्लो हो गया। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड हो गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हो गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हो गई। ओके, यहाँ प्रेशर डिफरेंस हो गया, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस। तो सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस को आप ऊपर रखते थे, बाकी जो भी बनता था नीचे क्या आता था? D/KA। इसका नाम था थर्मल रेजिस्टेंस। तीनों आप लिख के एनालॉग बनाओ, और फिर 3 रेजिस्टेंस आएंगे। यहाँ थर्मल रेजिस्टेंस ऑलरेडी आप कर चुके हो, है ना। ऊपर टेम्परेचर डिफरेंस, इधर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, इसलिए थर्मल रेजिस्टेंस है। और ये ऊपर टेम्परेचर डिफरेंस, इधर प्रेशर डिफरेंस, इधर पोटेंशियल डिफरेंस, जो कारण बनता है फ्लो का। यहाँ लिक्विड का फ्लो इसके कारण है, यहाँ चार्ज का फ्लो जो है, करंट का फ्लो इसके कारण है, और यहाँ हीट का फ्लो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण है। और नीचे जो भी आएगा वो रेजिस्टेंस होगा।